Hello students, welcome to all Scholar classes. So today I will be taking the third part of the chapter periodic classification of element, that is the chapter 5 of class 10 science. So till now we have studied many classification of periodic elements, periodic classification of elements. Just we will see a gist of that which I have explained you in my part 1 and part 2 video. So the first one which we have seen was the Dobereiner trait. So if you remember, that was based on what? Atomic mass. That classification was based on atomic mass, that if there are 3 elements, this was called as the trait. And out of these 3, the first and second atomic mass was if known. We can find the atomic mass of this second one, that is the atomic mass of first and second. Average of first and second was the atomic mass of the second one. Average of first and third was the atomic mass of the third. Average of first and third. Okay, so this was totally based on atomic mass. This was Dobereiner trait. Then second came about the Newlands. So he also made the classification of elements on the basis of atomic mass, in which he said that after it was also based on atomic mass. Okay, so he made a pair of 8. Okay, that's why it was known as Newlands law of octet. He told that after every 7th element, that is the 8th element, repeats the property of the first one. And after that came the Mendeleev periodic table. Okay, so if we talk about Mendeleev periodic table, it was also based on the atomic mass. He has arranged the element in the increasing order of its atomic mass. So what we can conclude that? We can conclude that Dobereiner, Newland and Mendeleev all made the classification based on atomic mass. There was nothing else except this atomic mass. Okay. So what happened after all these 3? In 1913, a scientist came whose name was Henry Moseley. Okay, so he gave the modern periodic table. Fine. So today we will be studying about the fourth one and the most important classification of elements, that is the modern periodic table. Okay. So, in 1913, it was given when in 1913, a scientist named Henry Moseley. Who was the scientist? Henry Moseley. What he gave the periodic table. He was the first man. Henry Moseley was the first man who told about what? About atomic number. Okay? Atomic number. So children, this is very important question and this is very important concept to be remembered. आपको ये बिल्कुल याद रखना है कि अभी तक जितने भी क्लासिफिकेशन हुए थे वो किसके बेसिस पे थे? एटॉमिक
Okay, so what he did, he had modified the Mendeleev periodic table. Mendeleev ने first time periodic table की बात की थी, लेकिन इन्होंने हेनरी मोज़ले ने फर्स्ट टाइम एटॉमिक नंबर की बात की। अभी तक किसी ने भी एटॉमिक नंबर के बेसिस पे कोई क्लासिफिकेशन नहीं किया था। So what he did, he modified the Mendeleev law and the atomic number was adopted on the basis of the modern periodic table. Okay, so modern periodic table was only dependent on atomic number, not on atomic mass. इन्होंने atomic number के basis पे periodic table को arrange किया. We will be seeing later how it has been arranged. So what does this modern periodic table states? So the modern periodic table states that the properties of the elements are a periodic function of their atomic number. Atomic mass नहीं, atomic number. So what does this periodic table states? It says that the properties of an element, okay, are a periodic, it is a periodic function of its atomic number, that is denoted by capital G. Okay, periodic number के basis पे, that is denoted by capital G. So what does this atomic number gives us? This atomic number tells us the number of proton in the nucleus of an atom. Atomic number हमें क्या बताता है कि कोई एटम है, सपोज करिए, ठीक है, उसमें आपके क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, और उस न्यूक्लियस में क्या क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तीन चीज, ठीक है। एटम है, एटम में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। तो ये जो एटॉमिक नंबर है, ये हमें किसका नंबर देता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, P बताएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की दो बहुत खास चीजें, एक तो ये कि ये एटॉमिक नंबर पे बेस है, ना कि एटॉमिक मास पे। दूसरी चीज कि अगर इसके डेफिनेशन हम देखें तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इट्स एटॉमिक नंबर। और थर्ड चीज कि एटॉमिक नंबर हमें क्या बताता है, वो हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताता है। ओके, so now what we will be seeing, we will be seeing the position of elements in the modern periodic table. I will be showing you the modern periodic table. So before showing it, I would like to tell you that how this periodic table is arranged. This is somewhat like this. Okay, ठीक है, ऐसे सारे एलिमेंट्स अरेंज हैं। ये एलिमेंट्स कैसे अरेंज हैं, पहली चीज जो है वो एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। इसी के बेसिस पे, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हुआ था। तो एलिमेंट्स को, जो जिस एलिमेंट का सबसे कम एटॉमिक नंबर है उसको सबसे पहले रखा गया, और जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता गया वैसे वैसे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। ओके, then the second thing is that it contains 18 vertical columns. कितने vertical column है, 18, like this, 1 2
हॉरिजॉन्टल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रोज है 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 8 रोज हैं, ठीक है। तो इनको क्या बोला गया, इनको बोला गया पीरियड्स, ठीक है। ओके, सो द फर्स्ट थिंग वाज दैट these atoms elements are arranged in the increasing order of their atomic number. The second thing is that there are 18 vertical columns and they are called as groups, and there are 8 horizontal rows that are called as periods. So now we will be seeing the periodic table so that we can get to know more about it, ki how on moving from left to right, what are the changes you can see, how the valencies change, how the cell numbers change. Okay, so let's see the periodic table. So this is, you can see the model periodic table here. If you see this modern periodic table, they are arranged according to increasing atomic number. Okay, so you can see here 1 2 2 is the helium, 3 4 5 6 7 8 9. So the atomic number is increasing and all the 118 elements found at that time or till date today has been arranged in this periodic table. Okay, so they are arranged in the increasing order of their atomic number. Okay, so the second thing which you can see is that there are 18 vertical columns, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. So how many vertical columns are there? 18. So these vertical columns, they are being called as groups. Okay, and horizontal line, if you will see, 1 2 3 4 5 6 7. So these are periods. Okay, so 1 2, all these elements are fitted here. Okay, 18 vertical columns known as the group, and these 7 horizontal lines, the rows, are known as the periods. Okay, so this is clear. So next you will be seeing that if periods are there, groups are there. Okay, now you can see that there is a different color given to each of the columns here. So why is this different color given? If you will see, you can get to know that. The first very thing I would like to tell you that these all elements, if you see this red line, so it is the division between the metals and non-metals. So this portion is a metal and here they are the non-metal portion. Okay, so these are the metal ones. So in metals, if you see, there are again some categories like these, the peach one, this lithium, sodium, potassium, all these up to 87, these are which? They are alkali metal. What is alkali metal if we see? So these all alkaline metals are there. Okay, yeah. And if you see this red column, they are which type of metal? They are the alkaline earth metal. Okay, so here you can see, one thing I would like to tell you, if you see this lithium, sodium, potassium, and then rubidium, cesium, and the last one is the francium. Okay, so they are occupying the first group. They are occupying the very first group, you can see, of the periodic table, and these are very reactive, electropositive and monovalent metals, forming strongly the alkaline hydroxides. Okay, since these are alkaline, they are alkaline metal, they form a strong hydroxide. They have a tendency, we have already studied in the metal chapter, metal and non-metal, that they have a tendency to form an alkaline hydroxide. Okay, so the next one, the red color here, you can see that beryllium, magnesium, calcium, strontium, then barium and radium. What
atom is colored in yellow. Okay, so this includes some of the elements of group third, then fourth, fifth, okay, and all these up to 12th group. Okay, so they are what, if you see these metals, if you see these, iron is also there here, okay, and magnesium is also there, and so many of them are there. So you can see there, sorry, not magnesium, manganese is there, Mn is there, okay. So chromium is there, Cr is there, and all these groups, copper and all, so they form the transition metal. So what is the transition metal if we see? So they chemically show some variable valencies. What happens, these elements, they have some variable valencies and they have a strong tendency to form coordination compound, and many of their compounds are very colored. So these compounds formed by these elements, are colored. So these are the transition elements. Okay. So you can see here कि up to this blue one, these are the metals, and this green one, that is the elements between the metals and non-metals. They are named as metalloids. These are what? They are metalloids. Okay. So here, if you see in the non-metals, the group 16, they were known as the chalcons. Okay. So why are they known as chalcons? If you see this group 16 having oxygen is there, sulfur is there, then selenium is there, tellurium is there, and polonium. Okay, so these are called as chalcons. Okay, this group 16 is named as chalcons. So you should remember this. It is very important that why they are called as chalcons, because these, if you see oxygen and all, they are ore formed. Okay, so they are known as the chalcons. And now if you see here, if you see the group 17 element, here you can see they are halogens. Okay, so group 17 are called halogens because these are what, they are salt producing. Non-metal में ये salt producing हैं, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? Halogens बोलते हैं. Halogens में क्या कौन से हैं? They include fluoride, chlorine, bromine, iodine and astatine. Okay, और जो last वाले हैं, they are the noble gases. Why they are the noble gases? Here this last one, because you have already, I have told you in some of the chapters like metals and non-metals that they have a complete, their outermost cell is a complete valence cell. Okay, and after that, so this was metals, non-metals, and the categories I have shown you. And one more thing I would like to tell you about lanthanides and actinides. If you see here in this group third, so from 57 to 71 there is a series of elements that are called as lanthanides, and if you see from 89 to 103 they are actinides. Okay, so this was the main points of this periodic table. I hope it is clear to you. In our this standard there is not much detail about it, but the things which you need to remember is that about the 18 vertical lines, that are the groups, and 7 horizontal lines, that are the periods. Okay, and the other important thing to remember is that when you move from left to right, जब इधर left से right की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है? Okay, so what you will see on moving from left to right in a period like this, you are then moving. Okay, so you will see that the number of valence electron increases from 1 to 8 in the elements present. ठीक है? अब आप अगर valence electron देखोगे तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो इसके फर्स्ट सेल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन आए? फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने आए? 2. तो वैलेंस सेल में कितना बचा? 1. बेरिलियम की बात करें तो वैलेंस सेल में 2 बचा. तो ऐसे अगर आप देखोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और ये नियॉन में पूरा वैलेंस सेल जो है कि कंप्लीटेड है. तो क्या होता है कि अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हो तो जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 1 by 1 8
बेरिलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, बोरॉन का 3 है, कार्बन का 4 है, नाइट्रोजन का 5 है, ऑक्सीजन का 6 है, फ्लोरीन का 7 है और नियॉन की कंप्लीट वैलेंस शेल्स है दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, इज दिस क्लियर टू यू? प्लीज रिमेंबर दिस दैट व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ओके, सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर अबाउट द वैलेंस सेल. वैलेंस सेल लेफ्ट टू राइट बढ़ने पे इंक्रीज होते हैं 1 by 1, 1 2 3 4 5 6 7 8. It means 1 to 8 in the elements present. Okay. Now if we move from left to right in periods, the number of cells remain the same, but the number of cells increases as we go down the group. Okay. So क्या होगा अगर आप left to right इधर move कर रहे हैं तो number of cells same होंगे. लिथियम के पास भी number of cells 2 हैं, बेरिलियम के पास भी 2 हैं, बोरॉन, कार्बन सबके पास 2 हैं, इवन नियॉन के पास भी 2 हैं. उसके बैलेंस सेल में क्या होगा 2 और 8, दो सेल्स उसमें भी है. लेकिन जब आप इधर मूव करोगे तो लिथियम के पास 2 सेल्स थी बट सोडियम के पास कितनी सेल्स है 3 सेल्स हैं. पोटेशियम के पास 4 सेल्स हो जाएंगे. तो ऐसे नीचे की तरफ जब आओगे पीरियड्स में आप तो बैलेंस नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस बट ग्रुप में क्या होगा कि नंबर ऑफ सेल्स इन अ पर्टिकुलर ग्रुप रिमेन्स सेम. तो इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर. ओके, आई होप ये क्लियर हुआ होगा आप लोग को कि लिथियम बेरिलियम एक ग्रुप में बैलेंस सेल सेम रहेगा. अगर 3 है तो 3 है सब में, 4 है तो सब में 4 होगा, सोडियम में भी, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम सब में. बट नीचे आप जब आओगे तो बैलेंस सेल इंक्रीज होगा. लिथियम का 2 है तो सोडियम का 3 हो जाएगा सेल, पोटेशियम का 4 हो जाएगा, ऐसे होगा. ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो कि हमें देखना था. अब अगर हम देखें तो हमें क्या पता चल रहा है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम है अगर वो सेम ग्रुप के हैं तो. ओके, ठीक है, इसमें सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 है, इसमें सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हैं. ठीक है, अब अगर आप सेकेंड पीरियड देखिए लाइक लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ये सारे हैं तो दे डू नॉट हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बट दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ सेल्स. इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो बढ़ रहे हैं, इसके पास 1 था, इसके पास 2 हो गया, जैसा कि मैंने बताया था कि लेफ्ट टू राइट बढ़ने पे बढ़ेगा बट इनके नंबर ऑफ सेल्स सेम है. ठीक है, और द नंबर ऑफ वैलेंस सेल्स इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड. ये भी बिल्कुल बता दिया मैंने आपको कि एक बढ़ेगा. ये इसका वैलेंस सेल अगर 1 है तो इसका 2 हो जाएगा, 3 4 5 6 7 8. ठीक है, और फिर क्या है कि जो लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको बताती हूँ. इट हैज अ वेरी गुड फॉर्मूला, आई विल शो यू एंड दिस विल मेक यू टू रिमेंबर इट वेरी थॉरोली. ओके, सो वी विल जस्ट सी हाउ वी कैन काउंट दिस. सो वी हैव सीन दैट हाउ these groups are there. Okay, 1 2 3 4 up to 18 and here we have seen the periods. Okay, अब now you will see that suppose we are taking this first second period elements. If you see the electronic configuration, if we see of lithium, since its atomic number is 3, it is going to be 2 and 1 लिथियम का. ठीक है, फिर बेरिलियम का देखते हैं, इट इज 4 then 2 and 2. Now next fifth element comes boron. So if we see for boron, it is going to be 2 and 3. Next comes carbon. If we see for carbon, it is going to be 2 and 4. Next comes nitrogen. If we see for nitrogen, 2 and 5. Okay. Then comes oxygen, 2 and 6. Then fluorine, 2 and 7. Then comes the neon,
that is 2 and 8. So what do you see here? It's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. What does it indicate? कि in the same period, that is the period 2, the valence cell is increasing 1 by 1. ठीक है? कैसे वैलेंस सेल इंक्रीज हो रहा है? यहाँ पे 1 है वैलेंस सेल में, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1. यहाँ पे वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 2 आए, फिर 3 आए बोरॉन में, यहाँ पे 3 आए, फिर 4, 5, 6, 7 और 8. नियॉन, चूंकि ये सारे कौन से हैं? नोबल गैस का ग्रुप है, तो इनके जो वैलेंस सेल होंगे वो फुल होंगे, कंप्लीटली फिल्ड होंगे. ठीक है? तो जो पहली चीज हमें पता चली वो ये है कि 1 यूनिट से वैलेंस सेल बढ़ता जाता है. सेम आप यहाँ पे भी देख सकते हैं. अगर आप सोडियम में देखिए तो इट इज गोइंग टू बी 2, 8 and 1. मैग्नीशियम में 2, 8 and 2. तो इसमें भी 1, 2, 3, 4 ऐसे पीरियड्स में बढ़ता जाएगा. जो फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज कि पीरियड्स वाइज एक यूनिट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं that are on moving from left to right, the number of cells remain same but the valence cell increases. Okay, number of cells सबका सेम है. अगर आप देखोगे तो 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. नंबर ऑफ सेल्स सेम है, लेकिन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो इंक्रीज हो रहा है. ठीक है? अब दूसरी चीज आप देखो, अगर आप यही चीज पीरियड्स में देखोगे तो हाइड्रोजन का हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1, लिथियम का 2 और 1, सोडियम का 2, 8, 1, पोटेशियम का देखोगे आप. ठीक है? 2, 8, 8, 1. तो अगर आप पीरियड वाइज देखेंगे तो जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो पीरियड्स में इंक्रीज हो रही हैं. ठीक है? यहाँ पे 1 सेल थी, यहाँ पे 2, 3 और 4, लेकिन जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सब में कॉमन है, दैट इज 1. ठीक है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉमन है, 1 है, लेकिन जो पीरियड्स में इंक्रीज हो रहा है, सेल्स जो हो रही हैं वो इंक्रीज हो रही है, जबकि ग्रुप में नंबर ऑफ सेल्स सेम है बट जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो इंक्रीज हो रहे हैं. आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू. ओके, so next we are going to see, ये तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और सेल्स की बात हो गई.
important to remember for finding the number of electrons to be accommodated in a particular cell. Okay? So now we have seen that how the positions of the element in the periodic table tell us about it, atomic number, about the valence cell, about the number of cells, how they are increasing and decreasing in a different way. So this also gives us about the chemical reactivity. Okay, how it tells us about chemical reactivity? Chemical reactivity के बारे में कैसे बताएगा? अब चूंकि ये जो periodic table है, we all know that the valence electrons determine the kind of bond that is going to be formed between an element. किसी elements के बीच में कैसा bonding होगी वो किस पे डिपेंड करता है? उसके valence cell पे. किस पे? valence cell कैसा है उसका? जैसा कि we have already studied it in carbon also, in metals and non-metals also. I have shown you the electron dot structure and all. So you have seen that कि अगर electron बहुत mobile है, ionic bond कैसे form होता है या covalent bond, about all these we have read. ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें उसके chemical reactivity में बताएंगी. जो valence electron है वो कितना free है कि वो किसी और element से bonding form कर सके. Okay, वो कितना bounded है, वो pairing कर रहा है तो वो covalent bond हो जाएगा, और वो पूरा ट्रांसफर हो जा रहा है तो वो ionic bond हो जाएगा. अगर शेयर कर रहा है तो covalent bond होगा. ये this all these we have studied in our previous chapters in detail. So this all gives about the chemical reactivity. Okay, so one by one now we will be seeing the trends in our periodic table. Okay, so now we will see the trends in modern periodic table. So there are many factors like valencies, there are atomic size, metallic activity. So there are many things that tells us about the trends in modern table. क्या trend है, कैसे periods में क्या increase हो रहा है या groups में क्या increase हो रहा है, increase या decrease. ठीक है? So first we are going to take about valency. So if we talk about valency, the first very important thing is what is valency, how it is determined. So if we see for an element, the valency is determined the number of valence electron. Valency क्या है? Number of valence electrons. Okay, तो number of valence electrons जो भी present होंगे in which, in the outermost cell. जैसे कि ऐसे cells हैं तो outermost cell में जितने भी number of valence electrons होंगे उनको हम क्या मानेंगे? उस particular element की valency को. ठीक है, वो valency हो गई. तो suppose we are taking the elements of group period 2. सॉरी, ठीक है, ये period 1 है, ये period 2 है. इनके इस ग्रुप के अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखते हैं सेकेंड पीरियड के, तो सबसे पहले आता है लिथियम. लिथियम इज गोइंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका 2 और 1 है. फिर बेरिलियम आता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 2 है. फिर बोरॉन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 3 है. फिर आपका कार्बन आता है 2 4. फिर नाइट्रोजन है 2 and 5. फिर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 6. ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन है 2 7, और उसके बाद इनर्ट नोबल गैस आती है दैट इज द नियॉन एंड इट गिव्स 2 and 8. ठीक है, अब इस बेसिस पे हम लोग वैलेंसीज को देखते हैं. तो जैसा कि वी नो दैट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट सेल, तो इस हिसाब से तो इनकी वैलेंसीज, इनके आउटरमोस्ट सेल में 1 है तो इनकी वैलेंसी 1 होनी चाहिए. इसके आउटरमोस्ट सेल में 2 है तो इसकी वैलेंसी 2 होनी चाहिए. बट इट इज नॉट लाइक दैट. देयर इज अ सम ट्रेंड दैट इफ वी टॉक अबाउट पीरियड, ऐसे अगर हम पीरियड्स में जाते हैं तो पहले तो इनिशियली द वैलेंसी इंक्रीजेस 1 to 4. आफ्टर दैट इट डिक्रीजेस एंड ट्रेंड्स टू 0. तो
3210 का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? इफ वी टेक बैलेंस सेल में को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8 होते हैं, लेकिन यहाँ पे कितने हैं? 5। तो 8 में से 5 निकाले, हाउ मच इज लेफ्ट? 3। तो वैलेंसी कितनी आई? 3। सिमिलरली ऑक्सीजन का लीजिए, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंडा जिससे आपको रिमेंबर होगा. यू आर नॉट गोइंग टू गेट दिस इन एनी ऑफ द बुक. दिस इज माय ओन प्रिस्क्रिप्शन व्हिच आई हैव मेड. So please look this carefully because it will help you to find the valencies very easily. आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं होगी. अब आप यहाँ पे देखो 6 है, बैलेंस सेल में 8 होता है और 6 को माइनस किया हमने तो बचा 2. तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2. अब फ्लोरीन की बात करें तो 8 में से 7 को निकाले, बचा 1. कितनी वैलेंसी हुई? 1. अब नियॉन को देखिए, 8 में से 8 माइनस किया, बचा 0, वैलेंसी 0. तो देयर इज नो टेंशन इन remembering the valency. Up to 4 you know that how many they are there in a valence cell. That is the number of valency. After 4 you just need to deduct the valence electron from 8. 3, 2, 1 and 0. तो ये तो हमने बात करी पीरियड्स में कि कैसे वैलेंसी पहले बढ़ रही है और then it is going to be decreased. अब अगर हम ग्रुप्स में देखें, ठीक है, ग्रुप में क्या होगा? पीरियड्स तो बढ़ रही है. अब ग्रुप्स की बात करें तो ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये ग्रुप है, 1 ग्रुप है, 2 ग्रुप है, 3 ग्रुप है. इसमें टॉप से बॉटम अगर हम लोग आ रहे हैं और ग्रुप्स में देखें तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सेम होते हैं. हाइड्रोजन के लिए भी 1 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लिथियम के लिए भी 1 है, सोडियम के लिए भी 1 है, पोटेशियम के लिए भी 1 है, सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है. ओके, तो जो ग्रुप 1 है उसकी वैलेंसी 1 हो गई, ग्रुप 2 की वैलेंसी 2 हो गई. ओके, ग्रुप 3 की वैलेंसी 3, 4 ऐसे हो जाएगी. ठीक है, तो ग्रुप्स में वैलेंसी चेंज नहीं होती है, जबकि पीरियड्स में वैलेंसी इज चेंजिंग. बट इन अ पर्टिकुलर ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम द वैलेंसी रिमेन्स सेम. तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट फॉर द वैलेंसी. यहाँ पे वैलेंसी का हमने देख लिया कि पीरियड्स में ये कैसे इंक्रीज होके डिक्रीज हो रही है और ग्रुप्स में ये रिमेन्स सेम. ओके, so now we will see for atomic size. Okay, friend, in modern table in atomic size, so we all know that the atomic size refers to the radius of an atom. It refers to the radius of an atom. So what we can say that the atomic size may be visualized as the distance between the center of the nucleus. Suppose this is a nucleus. Okay, from its center the distance to the outermost cell of an isolated atom. Atom nucleus के center से लेके जो outermost cell है isolated atom की, उसके बीच की जो distance है उसको what we are going to say? We are going to say it as atomic size. So now we will see the trends of this atomic size in periods and in groups. So if we talk in periods, the atomic size decreases in periods. Okay, if we move from left to right in a period, the atomic size is going to decrease. Okay, from left to right. So why this is going to happen? This is due to increase when we move from left to right. There is an increase
atomic size is going to be decrease. Suppose सेकेंड पीरियड को लेते हैं, जैसे लिथियम है, तो लिथियम के पास सबसे ज्यादा एटॉमिक साइज होगा, बेरिलियम का उससे कम हो जाएगा, बोरॉन का उससे कम कार्बन, नाइट्रोजन और फिर ऑक्सीजन और फिर फ्लोरीन। तो हाईएस्ट लिथियम का है, लोएस्ट फ्लोरीन का। और एक जो इम्पोर्टेंट थिंग है टू बी नोटेड इज दैट इफ वी टॉक अबाउट दिस नोबल गैसेस, सो नियॉन इज देयर और इन एनी ऑफ द पीरियड व्हाटएवर द नोबल गैस इज देयर, हीलियम इज देयर, सो द एटॉमिक साइज ऑफ द नोबल गैस इन पर्टिकुलर करस्पॉन्डिंग पीरियड इज द लार्जेस्ट। जिस पीरियड का जो नोबल गैस है, जैसे फर्स्ट पीरियड का हीलियम है, सेकंड का नियॉन है, उस पर्टिकुलर पीरियड में हाईएस्ट एटॉमिक साइज किसकी होगी? सबसे ज्यादा तो नियॉन की होगी, उसके बाद लिथियम आएगा। ठीक है, तो जो भी नोबल गैस प्रेजेंट है दैट इज गोइंग टू हैव द लार्जेस्ट एटॉमिक साइज। व्हाई इज दिस हैपनिंग? दिस इज बिकॉज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज सच दैट दे हैव कंप्लीटेड देयर ऑक्टेट। उनका जो आउटर मोस्ट सेल है वो फुल है, कंप्लीट ऑक्टेट है उनके पास, तो न्यूक्लियस किसी इलेक्ट्रॉन्स को पुल करने का कोई चांस ही नहीं, तो उनके पास तो सबसे ज्यादा होगी एटॉमिक साइज। बट वैसे ट्रेंड में ये डिक्रीज करेगा, तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऐसे ही आपका सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, इनका भी ऐसे ही डिक्रीज होता जाएगा। ओके, तो ग्रुप पीरियड्स में तो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन ग्रुप्स में क्या होगा? अगर हम ग्रुप्स की बात करें तो ग्रुप्स में इंक्रीज करेगा। ओके, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस इन ग्रुप। अब देखते हैं हम डाउन द ग्रुप ये कैसे इंक्रीज करेगा। इधर अगर ग्रुप में आएंगे डाउन द ग्रुप तो ये इंक्रीज करेगा। ओके, हाउ इट इज गोइंग टू इंक्रीज? अब होता क्या कि हीलियम के पास एक सेल थी, यहाँ लिथियम के पास 2, सोडियम के पास 3। जब हम ग्रुप में नीचे जाएंगे, as we have already seen, तो नंबर ऑफ सेल्स आर गोइंग टू इंक्रीज। सेल्स के नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, इट इज बीइंग एडेड व्हेन वी गो डाउन द ग्रुप। सो दिस इंक्रीजेस द डिस्टेंस बिटवीन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। अब एक सेल, जैसे आप देख सकते हो, पहले 1 सेल है, 2 सेल हुई, 3 सेल हुई, तो अब क्या है? अगर केवल 1 सेल थी तो डिस्टेंस न्यूक्लियस के मिडिल से लेके आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन कितनी थी, लेकिन अब सेल बढ़ा तो डिस्टेंस और बढ़ गई। अगर एक और सेल बढ़ गया तो डिस्टेंस और बढ़ गई। आई थिंक दिस फिगर मस्ट बी वेरी क्लियर टू यू। जैसे जैसे सेल बढ़ रहा है, द डिस्टेंस इज आल्सो इंक्रीजिंग, सो द एटॉमिक साइज इज आल्सो इंक्रीजिंग। अब देखिए यहाँ पे और ज्यादा साइज हो गई, ये कम है, ये और कम है। ओके, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस थी वो बढ़ रही है, तो एटॉमिक साइज इज आल्सो इंक्रीजिंग। ओके, सो इफ वी टेक द एग्जांपल हियर इन दिस, सो वी कैन सी दैट lithium has 152 atomic size. Then if we take sodium, it is 186. Okay, then if we talk about potassium, it has 231. Then rubidium, Rb has 244. Cs has got, cesium has got 262. तो जैसे डाउन हो रहा है वैसे आपका एटॉमिक साइज भी बढ़ती जा रही है। तो व्हाट डिड वी गेट टू नो? पीरियड्स में एटॉमिक साइज डिक्रीज होगी
तो जैसे जैसे फ्लोर ऊपर जाएगा वैसे वैसे ग्राउंड से डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। सेम यहाँ पे है कि जैसे जैसे सेल्स बढ़ रहे हैं, ग्रुप में आप नीचे जा रहे हो, सेल्स बढ़ रहे हैं और न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ रही है। तो सेम चीज है, ग्राउंड को आप मान लो कि आपका न्यूक्लियस है और फोर्थ फ्लोर इज योर आउटर मोस्ट सेल। फिफ्थ फ्लोर पे गए तो और दूर हो गया ग्राउंड से। सिमिलर थिंग इज देयर। ओके, सो दिस वाज अबाउट द atomic size. Now we will see the metallic and non-metallic characteristics properties. Okay. The third one is the metallic property. Okay, so if we talk about the metallic property, we have already studied in our metals and non-metals chapter that if in periodic table if you see, we will see that this side has the metals and the left side is going to have, sorry, the right side is having the non-metals. Left side में metals है, right side में non-metals है. Okay, so in periodic table जैसे कोई भी मेटल्स है, जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, all these are towards the left hand side, and whereas the non-metals are like sulfur and all are in the right hand side. Sulfur, chlorine all are found in the right hand side. Okay, so this was the one thing. And in the middle, these transition elements are there, and here there are metalloids. I have already told you metalloids बीच में होते हैं. ओके, सिलिकॉन है और अदर हैं जिनको कि सेमी मेटल्स हम कहते हैं या मेटलॉइड्स कहते हैं. क्यों ऐसा होता है? बिकॉज दे हैव सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स एंड सम नॉन मेटल्स. उनका कुछ फिक्स नहीं है दैट दे आर मेटल्स, सम कैरेक्टर्स ऑफ मेटल्स, सम नॉन मेटल्स, सो दे आर इन अ मिडल ग्रुप एंड दैट इज अ सेमी मेटल और मेटलॉइड्स. ओके, सो दे एग्जिबिट सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. दोनों की प्रॉपर्टी होती है बोथ. ओके, सो अब अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें तो आई हैव ऑलरेडी शोन यू देयर वाज अ zigzag line which was separating the metals from non-metals. Okay, so that border line was such that it has boron, silicon था यहाँ पे, फिर जर्मेनियम था, आर्सेनिक था और एंटीमोनी और पोलियम ऐसे करके सब थे. ठीक है, zigzag line है, आई ऑलरेडी शोड यू, जो कि इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज को मेटल्स और नॉन मेटल्स के डिस्टिंग्विश करता है. ओके, तो अब नाउ वी विल सी द ट्रेंड्स. मेटेलिक कैरेक्टर का ट्रेंड्स अगर हम देखें तो अगर हम मेटेलिक प्रॉपर्टी की बात करें एज वी हैव स्टडीड इन आवर प्रीवियस चैप्टर आल्सो, तो मेटल क्या, मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या, लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स. ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूजिंग प्रॉपर्टी होती है. ठीक है, मेटल दे टेंड्स टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स व्हेन दे आर फॉर्मिंग बॉन्ड. ओके, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि हाउ दीज मेटल्स दे लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स जस्ट टू फॉर्म अ बॉन्ड एंड दे बिकम्स. अब इलेक्ट्रॉन देगा ये, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज होता है. तो अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा. सो दे आर electropositive in nature. What is their nature? Electropositive. ठीक है, Are you clear? Metals की क्या प्रॉपर्टी होती है? वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है. अगर वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को निकाल रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स तो नेगेटिव चार्ज है, वो नेगेटिव को हटा रहा है तो उसके अंदर पॉजिटिव आ रहा है. आप अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिव अपने अंदर से नेगेटिविटी को हटाएंगे तो आपके अंदर क्या आएगी, पॉजिटिविटी आएगी. सेम मेटल्स के साथ भी है, मेटल्स अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स हटा रहा है. सपोज कर लीजिए
कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट इधर इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हैं, दैट्स व्हाई देयर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इज वेरी लो, दैट्स व्हाई दे आर नॉन मेटल. ओके, सो अगर इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ द मेटेलिक कैरेक्टर इन अ सेकंड पीरियड, तो सबसे ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर लिथियम का है, फिर बेरिलियम का है, और जैसे जैसे हम उधर जाएंगे डिक्रीज हो रहा है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन. ओके, अच्छा, वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो भी पैटर्न है, चाहे वो वैलेंसी का हो या एटॉमिक नंबर का हो, एटॉमिक साइज का हो या मेटेलिक कैरेक्टर हो, ये सारे हम इसको छोड़ के लिखेंगे. वी डोंट कंसीडर नोबल गैसेस बिकॉज नोबल गैस हैव देयर ओन ट्रेंड, because they are fully complete, they have the fully complete outermost cell, that is they have the complete octet, so they have a different trend. but अगर normal इनका देखेंगे तो metallic character decrease हो रहा है because fluorine is very strong non-metal, उस साइड non-metals है, ठीक है. और अगर ग्रुप्स की बात करें तो metallic character ग्रुप्स में भी डाउन जाने पे इंक्रीज करता है, क्योंकि एटॉमिक साइज भी इंक्रीज करती है और टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज होगा. अगर इधर ग्रुप में एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी तो एटॉमिक ये जो इनके अंदर टेंडेंसी टू इलेक्ट्रॉन को लूज करे वो भी इंक्रीज होगा, तो इधर ये इंक्रीज होगा, ठीक है. पीरियड्स में डिक्रीज हो रहा है और ग्रुप्स में इंक्रीज. ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे कम अगर पीरियड्स की बात करें तो लिथियम सबसे कम मेटेलिक है, उससे ज्यादा सोडियम, देन मैग्नीशियम, देन पोटेशियम. ओके, ऐसे ऐसे रुबेडियम, लाइक दिस इट इज गोइंग ऑन. सो दिस वाज अबाउट द मेटेलिक कैरेक्टर. नाउ वी विल सी फॉर द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, जो कि इसका जस्ट अपोजिट होगा, जो भी मैंने मेटेलिक प्रॉपर्टी के बारे में बताया. अब मेटल्स तो लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और नॉन मेटल्स की क्या खासियत होगी? दे वांट टू गेन इलेक्ट्रॉन, गेनिंग नेचर है. अब इलेक्ट्रॉन ले रहा है, नेगेटिव चार्ज ले रहा है, नेगेटिविटी ले रहा है, तो ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू बी इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, इलेक्ट्रोनेगेटिव. अब आप अपने अंदर नेगेटिविटी को लोगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ही तो होगे. इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, नेगेटिव चार्ज ले रहा है अपने अंदर, ठीक है. तो नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दे हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन. मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड नॉन मेटल्स दे गेन इलेक्ट्रॉन. ओके, सो सिमिलरली एवरीथिंग इज गोइंग टू बी जस्ट अपोजिट. अब आप जब ग्रुप पीरियड्स में बढ़ोगे तो आप देखोगे कि लेफ्ट साइड में मेटल्स जा रहे थे, राइट साइड में नॉन मेटल्स जा रहे हैं. Okay, so if you will move this side, the non-metallic property is going to increase. Okay, non-metallic property increase हो रही है. Okay, इधर नॉन मेटल्स जाते हैं तो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी जो है कि इंक्रीज होगी, क्योंकि जो टेंडेंसी है फॉर गेनिंग द इलेक्ट्रॉन दैट इज गोइंग टू बी इंक्रीज. ओके, तो सबसे अगर आप ग्रुप 2 में पीरियड्स में देखोगे तो सबसे कम नॉन मेटल Li है, Li मेटल है, देन Be, देन कम्स बोरॉन, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, और सबसे अच्छा नॉन मेटल इज अ फ्लोरीन. ओके, सिमिलरली इफ यू मूव इन अ ग्रुप तो डिक्रीज होगा, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी decreases in the group. Why? Because the tendency to gain electron decreases. Okay, so for example, if you will see in any of the group, here also the non-metallic character increases, and if we see this is a non-metal, तो फ्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो सबसे ज्यादा नॉन-मेटेलिक कौन है? आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन. ओके, सबसे ज्यादा फ्लोरीन सबसे कम है, उससे ज्यादा क्लोरीन है, उससे ज्यादा ब्रोमीन है, और उससे भी ज्यादा आयोडीन है. आयोडीन इज द मोस्ट नॉन-मेटेलिक, लीस्ट नॉन-मेटेलिक, because it
decreasing in the group. Fluorine is the most non-metallic. Okay, it is decreasing. Fluorine, chlorine, bromine, iodine. सबसे ज्यादा फ्लोरीन और सबसे कम आयोडीन. Okay. So we have seen that there were some drawbacks in the Mendeleev periodic table. Okay. So this model periodic table has explained all those things. So there was the first issue in the Mendeleev periodic table was for the isotopes. That for isotopes there were no position. Mendeleev has explained that where should these isotopes, like chlorine has got two isotopes, chlorine 35 and chlorine 37. So there was no, he has not answered that where these isotopes are going to live. So what does model periodic table gave the explanation for the position of isotope, that the same atomic number, अब chlorine का atomic number तो same है, okay, they are going to be put in one group. उनके आइसोटोप्स जितने भी हों, बट अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो दे आर इन वन ग्रुप. जबकि मेंडेलीव ने आइसोटोप्स के बारे में कुछ भी नहीं बताया था. तो एक क्लैरिफिकेशन तो इन्होंने ये दिया कि आइसोटोप जितने भी हों, बट अगर उनका एटॉमिक नंबर सेम है तो दे आर गोइंग टू बी पुट इन वन ग्रुप. ओके. और जो सेकेंड चीज थी मेंडेलीव में ड्रॉबैक, वो कोबाल्ट एंड निकल का था कि जिसका एटॉमिक मास ज्यादा है वो पहले था और एटॉमिक मास कम वाला बाद में था. सो फॉर दिस कोबाल्ट एंड निकल आल्सो, कोबाल्ट विद द एटॉमिक नंबर 27, इसका एटॉमिक नंबर 27 है, एंड इफ वी टेक फॉर निकल, इट्स एटॉमिक नंबर इज 28. ओके. सो कोबाल्ट कम्स बिफोर निकल इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. इसका भी एक्सप्लेनेशन हो गया कि कोबाल्ट कम्स बिफोर निकल इन द एटॉमिक टेबल बिकॉज द एटॉमिक मॉडर्न एटॉमिक टेबल इज बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर्स. तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कम है तो इट विल कम फर्स्ट, देन द निकल. ओके. जो थर्ड ड्रॉबैक था वो ये था कि हाइड्रोजन वगैरह की कोई पोजीशन नहीं थी. हाइड्रोजन मेटल्स टाइप का भी था, बिहेव करता था, नॉन मेटल्स जैसा भी बिहेव करता था. इट हैज प्रॉपर्टी टू फाइंड फॉर्म विद हैलोजन से भी वो फॉर्म करता था और अल्कलाइन मेटल से भी फॉर्म करता था वो रिएक्शन. तो व्हाट वाज फॉर दैट? सो फॉर हाइड्रोजन इफ वी टॉक, जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया कि इनका जो भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का फैक्टर था वो टोटली जेड, दैट इज एटॉमिक नंबर पे बेस्ड था. नथिंग वाज बेस्ड ऑन द एटॉमिक मास. सो अनलाइक एटॉमिक मासेस, द एटॉमिक नंबर दैट इज Z is always a whole number. Atomic mass में क्या होता था? 3.35, 37.2 ऐसे होता था. Okay, decimals होते थे उसमें. But atomic number is a whole number. It will be 21, 31, 45. It is not going to be in decimals. So atomic number is always in a whole number. So there is no element in between hydrogen and
throughout the world, and all the drawbacks of the Mendeleev has been solved in it. Okay, so this was all about the periodic classification of element, and today we have completed our chapter. So it has been completed today. I hope you must have got